آپ حضرات کے بیچ پیش کیا گیا، واقعی یہ بڑی مشکل اور بہت ہی صلاحیتیں لگانے کے بعد ایسے اشعار کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن قربان جاؤ لکھنے والے کے قلم پر اور پڑھنے والے کے اس زبان پر۔ اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا تو ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ بن گیا۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اب آئیے میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں خطابت کی دنیا میں لیے چلوں، جس کے لیے کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اب بلا دوں جی گل کو جو شعلہ بنا دے میں بلاتا ہوں اسے، گل کو جو شعلہ بنا دے میں بلاتا ہوں اسے، پانی میں جو آگ لگا دے میں بلاتا ہوں اسے، گل کو جو شعلہ بنا دے میں بلاتا ہوں اسے، پانی میں جو آگ لگا دے میں بلاتا ہوں اسے، شیر سی آواز اور باطل شکن تقریر سے جو خرمن باطل جلا دے میں بلاتا ہوں اسے۔ آئیے رئیس المتکلمین، سراج السالکین، قدوۃ العارفین، عاشق سید الاولین والآخرین، خیر خواہ دین و متین، ممتاز عالم دین، جناب حضرت العلام حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب دارجلنگ بنگال سے سرزمین اڑیسہ تشریف لائے ہیں، جن کے لیے یہ شعر کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ انداز خطابت میں ہو نور کا وہ منظر، انداز خطابت میں نور کا ہو منظر، باطل کا اندھیرا بھی جس سے ہو رفو چکر، انداز خطابت میں نور کا ہو منظر، باطل کا اندھیرا بھی جس سے ہو رفو چکر، بجے گا اسلام کی عظمت کا ڈنکا، بجے گا ڈنکا اسلام کی عظمت کا، باطل کے لیے تیری تقریر بنے خنجر۔ اب آئیے مائک پر حضرت مولانا و مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب دارجلنگ بنگال۔ جو حضرات بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں ان سے میری درخواست ہے سمٹ جائیں اور کرسیاں سامنے لے آئیں۔ ارے کال والا تو کال والا کون کہاں رک جاؤ چینچا ہوا ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم شکر ہے راہ ترقی اگر بڑھتے ہو
یہ تو بتلاؤ کہ قرآن بھی کبھی پڑھتے ہو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے، اور ہم خوار ہوئے تارکے قرآن ہو گئے۔ کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ایمان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید، ہمیں یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید، ہمیں عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو۔ جلسہ پورا ٹھنڈا ہو گیا، آپ کھا پی کر کے بیٹھے اور نیند میں آپ آدھا ہندوستان میں ہیں آدھا قبرستان میں۔ اگر مکمل بیدار نہیں ہوئے تو میں سیدھا قبرستان پہنچا ہی دوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بچپن میں قرآن، جوانی میں اخبار پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مجمع ہی رہا۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں اور صحابی سوار ہیں۔ صحابی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ بڑی بے ادبی ہے، آقا تو پیدل چلے اور غلام سوار ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا، دستار کے دولہے کو سامنے رکھیے۔ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، ایک ہی بچہ آپ کا حافظ بھی بنے گا ماسٹر بھی بنے گا، طریقہ کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ اور تیسرا سوال ہے اور آخری سوال ہے، یہ جو پنڈال ہے یہ مردوں کا پنڈال ہے اور یہیں سے باہر آگے جا کر کے عورتوں کا پنڈال ہے۔ دستار کا جلسہ تھا، مرد بھی آئے جلسہ سننے لگے، عورتیں بھی آئیں جلسہ سننے لگی۔ جب بچے کو سر پر دستار باندھی گئی تو عورت کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے ہاتھ جوڑ کر کے اپنے شوہر سے کہا کہ تم حافظ بن جاؤ، میری آخری تمنا۔ تو شوہر بولا بوڑھا طوطا کیا سیکھے گا، اس بڑھاپے میں کہاں سے میں حافظ بنوں گا۔ عورت نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ 6 مہینے میں حافظ بن گیا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ مکمل یہاں سے لے کر کے وہاں تک سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بس 3 سوال سے پیغام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے۔ میں تو اتنا گھبرا چکا تھا کہ میں سمجھ گیا تھا کہ اب جلسہ نہیں ہوگا، میلاد ہوگا، لیکن میں نے سوچا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اگر بتی جلاؤں گا موم بتی جلاؤں گا، چراغی مرادی لے کر کے 9-11 ہو جائے۔ ماشاءاللہ آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی، چمکتی ہوئی ٹوپی، میرا دل خوش ہو گیا۔ مجھے ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ مغرب کے بعد کا ہے اور مجھ سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، یہی دیکھنا تھا، 2 امتحان ہو چکے۔ میرا پہلا سوال تھا، ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجئے، ایک لائن میں سوال گزر جائے گا۔ ڈس بریک ماریے، ہماری طرف توجہ کیجئے، ہنسنا منع نہیں ہے لیکن ہنس کر کے ہماری طرف فوراً توجہ کیجئے۔ میرا پہلا سوال تھا، اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں، غلام سوار ہے۔ اللہ کے رسول سے جب صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑی بے ادبی ہے، نبی تو پیدل چلیں اور غلام سوار ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تو پوچھو، میں تمہارے لیے پیدل چل رہا ہوں، میں نے تم کو اپنی سواری پر سوار کر دیا، میں تمہارے احترام میں پیدل چل رہا ہوں،
یہ تو پوچھو کہ تمہارا احترام کیوں ہے؟ تم کو میں نے سوار کیا، میں تمہارے لیے پیدل چل رہا ہوں، تمہارے احترام میں چل رہا ہوں، اس لیے تمہارا احترام کر رہا ہوں کہ تمہارے سینے میں قرآن ہے، حافظ قرآن ہو، اس لیے نبی تمہاری خاطر پیدل چل رہا ہے۔ ایک ہی بچہ آپ کا حافظ بھی بنے گا، ماسٹر بھی بنے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ 5 سال اسکول میں پڑھائیے، اسکول میں 5 سال جب مکمل ہو جائے اس کو وہاں سے نکالیے، 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کیجئے۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا، اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو۔ اور 3 سال کا جو گیپ ہوا اسکول کا، آپ ٹیوشن کرائیے، وہ ہر بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی۔ آخری سوال تھا، مرد آیا جلسہ سننے کے لیے، عورت آئی جلسہ سننے کے لیے، دستار کا دولہا دستار لے کر کے بیٹھا، عورت کا دل خوش ہو گیا۔ جب جلسہ ختم ہوا، مرد گھر گیا تو عورت کھڑی ہو گئی کہ تم کو میری فرمائش پوری کرنی ہوگی۔ تو شوہر بولا کہ اب تو بوڑھا ہو گیا، اب کیا فرمائش پوری کرو؟ کہنے میری ایک فرمائش، تم بھی حافظ قرآن بن جاؤ، تمہارے سر پر خدا کے ہاں دستار ہوگی، تمہارے برابر میں میری کرسی ہوگی، تمہارے صدقے مجھ کو عزت مل جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن شوہر بولا کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھے، صحیح سے کلمہ یاد نہیں ہے، قرآن کیسے سیکھ سکتے؟ تو عورت نے کہا کہ اگر تم حافظ قرآن بنو گے تم کو انعام ملے گا۔ انعام کا نام سن کر کے بوڑھا بھی جوان ہو گیا، کان کھڑے ہوئے، پوچھا کہ کیا انعام ملے گا؟ تو عورت نے کہا کہ تم کو دوسری شادی کی اجازت ہو جائے۔ اب کیا تھا، دوسری شادی کے چکر میں 6 مہینہ رات دن ایک کر کے حافظ قرآن ہو گیا۔ نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا، قرآن سے ملا، یہ شوق ہم کو حضرت حسان سے ملا، حسان سے ملا، یاسین سے یاسین سے تشافی قلب و جگر ملی، اظہار شکر سورے رحمان سے ملا، رحمان سے ملا، اظہار شکر سورے رحمان سے ملا، رحمان سے ملا۔ یہ بغل میں ہے، دیکھیے کس طرح سو رہا، یہ بستی کا داماد ہے، اس کو اٹھائی، کتنا آرام سے سو رہا ہے، اور پیشانی سیدھا آسمان پر ہے، جبریل امین کا انتظار کر رہا ہے کہ وہی لے کر کے آ جائے۔ رمضان کو سامنے رکھیے، قرآن کو سامنے رکھیے، 2 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پر رکھوں گا، مجھے امید ہے کہ آپ بہت دھیان سے سنیں گے۔ آپ کو میں نے پچھلے سال جلسہ سنایا تھا اور اس جلسے کی پیاس ابھی تک باقی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سمندر بھی پی جائیں گے پھر بھی آپ کا پیٹ بھرے گا نہیں، چاہے میرا پیٹ پھٹ جائے۔ خیر دھیان سے سنیے گا، 2 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پہ رمضان کے حوالے سے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ یہ آ رہا ہے رمضان، اب جو چاند نکلے گا رمضان کا چاند نکلے گا، اور رمضان کے چاند کی خوبی کیا ہے کہ جیسے چاند نکلتا ہے تراویح شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان کا چاند جیسے نکلا تراویح شروع ہو گئی، اور تراویح کب تک چلے گی؟ جب چاند نکلے گا۔ وہ کون سا چاند ہوگا؟ عید کا چاند۔ رمضان کا چاند نکلا تراویح شروع ہو گئی، عید کا چاند نکلا تراویح ختم ہو گئی۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، اس کو دل کی ڈائری پر نوٹ کیجئے۔ چاند سے تراویح شروع ہوتی ہے، چاند پر تراویح ختم ہوتی ہے، لیکن مسجد کا حال دیکھیے، جس دن ختم قرآن ہوگا اسی دن ختم تراویح ہو جائے گی۔ ختم قرآن اگر 10 دن میں ہوا تو 10 دن میں ختم تراویح۔ 20 رمضان پانے کے باوجود بھی مسلمان قرآن کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کو چاند پر تراویح شروع کرنی ہے اور چاند پر تراویح ختم کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک حافظ صاحب آئے عالم، کہا کہ میں تراویح سنانا چاہتا ہوں، تو بستی والے بولے کتنے دن میں سناؤں گا؟ کہا میں بدلے بھارت ہوں، میرے پیچھے آنکھ بند کر کے کھڑے ہو جانا، 3 دن میں گوہاٹی پہنچا دے۔
सुबहान अल्लाह, ये तो किस्मत से मिला है उड़ीसा वाले को, ना बढ़िया हाफिज कहाँ से मिलेगा। तो कमेटी वाले ने कहा कि 3 दिन में कुरान सुनोगे पैर फूल जाएगा। बोला 3 दिन ही ने मुसीबत उठानी है, जलसा ही के दिन नमाज पढ़ना है, उसके बाद तो साल भर छुट्टी, 27 दिन की छुट्टी है। बड़े खुश हुए लोग, कहा कि हाफिज साहब तरावी सुनाइए। सुभान अल्लाह। 3 दिन के बाद ऐलान हो गया कि खत्म कुरान हो गया, मिठाई बांटो। पीछे एक मुक्तदी था, उसको सूरह यासीन याद थी, वो खड़ा हुआ कि हुजूर खत्म कुरान हो गया, सूरह यासीन कहाँ आई है। अब हाफिज साहब को पता चल गया कि तमाम अंधों में काना राजा भी, मेरी तो चोरी पकड़ी जा रही है। इसने बात को बदल करके कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। सूरह यासीन तो मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर थोड़ो पढ़ी जाती है। मैं जैसे ही पढ़ता पीछे एक एक करके सबका जनाजा हो जाता। तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को कर लूं मैं सुबह निगाहों की हिफाजत, कर लूं मैं इबादत और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को। यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह चांद से तरावी शुरू करेंगे, चांद पर तरावी खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। हफ्ता भर की नमाज जुमा में, साल भर का कुरान रमजान में होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जोर का झटका थोड़ा धीरे से लग रहा है। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके ये भुवनेश्वर पहुंच ही जाएंगे, और अगर आखिर तक बेखबर रहे तो सीधा रांची पहुंचेंगे हमारे साथ। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हर काम में आपको मजा आएगा। जैसे लोग खाना खाते हैं, बिरयानी का अलग मजा है, टिकिया का अलग मजा है, सलाद का अलग मजा है, उसी तरह हर काम में मजा मिलता है, मगर एक काम में मजा नहीं मिलता। जानते हैं वो कौन सा काम है जिसमें मजा किरकिरा जाता है, कुछ भी मजा नहीं आता? वो काम रोजा है। भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है, बीवी से कोई मतलब रखना नहीं पड़ता है। हर काम में मजा मिलता है, इसमें मजा नहीं मिलता। जिसमें मजा नहीं मिलता वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। अच्छा, एक चीज अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। हम नमाज पढ़ते हैं, गैर भी अपनी देवी देवता के लिए नमाज पढ़ते हैं। हम कुर्बानी देते हैं, वो भी कुर्बानी देते हैं। हम हज करते हैं, वो लोग अभी इलाहाबाद में हज कर रहे हैं। हमारा हज घूम करके होता, उनकी डुबकी चल रही है। वो लोग भी हज करते हैं, सब काम होता है अल्लाह के लिए। हमने नमाज पढ़ी, उन्होंने भी नमाज पढ़ी। हमने अल्लाह के लिए कुर्बानी किया, उन्होंने भी किया। हमने हज किया, उन्होंने भी हज किया। हमने सिले हुए कपड़े नहीं पहने, उन्होंने भी सिले हुए कपड़े नहीं पहने। मगर एक काम जो हमने किया उन्होंने नहीं किया, हमने रोजा रखा, उन्होंने रोजा नहीं रखा। ये रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, देवी देवता के लिए नहीं होता। एक मुताला सुन करके आपका बड़ा दिल खुश होगा। नमाज हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं कहता कि मेरे लिए। ज़कात हम अल्लाह के लिए देते हैं, अल्लाह नहीं कहता कि ज़कात मेरे लिए। लेकिन हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह कहता है, खुद कहता है कि रोज़ा मेरे लिए। अल्लाह अकबर। बात क्या है भाई? और कीजिए, जो आदमी रोज़ा रखता है, खाता नहीं, खाने की हाजत नहीं, पानी पीता नहीं, पीने की हाजत नहीं, बीवी के पास जाता नहीं, बीवी की हाजत नहीं,
गौर कीजिए, खुदा की जात में वो खाता नहीं, खाने की हाजत नहीं, पीता नहीं, पीने की हाजत नहीं, बीवी उसको है नहीं, बीवी की हाजत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो खुदा खुश होकर के देखता है, जैसे मैं खाता नहीं वैसे ये नहीं खाता, जैसे मैं बीवी के पास नहीं वैसे ये बीवी के पास नहीं। ये मेरा बंदा होकर के मेरी कॉपी कर रहा है, मेरी नकल उतार रहा है, इसलिए अल्लाह कहता है रोजा मेरे लिए। इससे भी ज्यादा आपका दिल खुश होगा। हर काम का बदला मिलेगा किसके हाथ से? फरिश्ते के हाथ से। अभी मैं देख रहा था कि आप लोग शायद साहब को इनाम दे रहे थे, लेकिन आप लोग बहुत चालाक आदमी थे। 500 का नोट बचा रहे थे, 10 का नोट आप दे रहे। पूरी बस्ती में जलसा चल रहा था, तो जब भी शायर साहब शेर पढ़े तो 10 ही का नोट ला करके दे। तो शायर साहब खिसिया करके बोले कि इस बस्ती में 500 का नोट नहीं है। तो एक चचा खड़े हुए, 500 का नोट लेकर के ला करके रख दिया। शायर साहब लग गए दुआ देने के लिए, वाह चचा साहब आप 400 साल जिंदा रहे, फरिश्ता आपका नाम भूल जाए, 500 का नोट आप लेकर के आए। जब दुआ दे दिया फिर भी चचा खड़े, तो कहा कि आप जाइए, मैं तो दुआ दे चुका हूँ, आप बैठ जाइए, चाहे जन्नत में जाइए चाहे दोज़ख में जाइए। तो चचा बोले कि 590 रुपये वापस करो। 490 रुपये तुम वापस करो। तो मैं कह रहा था कि हर चीज का बदला जन्नत है। मैं जब आया था जिस वक्त, तो उस वक्त देखा कि जलसा देखने वाले बहुत लोग थे, आए और चले गए। ये जलसा उनके हक में मेला हो गया। जो जलसा सुनने वाले हैं वो अभी तक जाग रहे हैं। ये रात आपकी इबादत में लिखी जा रही है। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह इस रात को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। हर काम का बदला जन्नत है और हर नेकी का बदला फरिश्ते के हाथ से मिलेगा। कुर्बान जाइए, रोजे के ऊपर अगर आपने रोजा रखा तो बदला फरिश्ते के हाथ से नहीं मिलेगा, खुदा के हाथ से मिलेगा। नमाज का बदला तो जन्नत है, रोजे का बदला जन्नत से बढ़ करके जन्नत के बनाने वाले खुदा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, रोजा रखें या ना रखें मगर ईद धूमधाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह। आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। या रब मेरे कलम को तू वो रोशनाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे। मेरे शोर फिक्र में तेरा ही है जमाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग यहां से वहां तक सुन रहे। माइक वाले को लोग इतना खोद रहे थे कि बेचारे को बंदर की बीमारी हो गई थी। माइक इतना अच्छा सर्विस दे रहा है, इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है माइक, कि इस माइक को कलकत्ता जाना चाहिए। बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। कभी कभी होता क्या है कि इतना ऐब लोग निकालते हैं ना, हुनर भी ऐब हो जाता है। बहुत अच्छा माइक है, बहुत अच्छी सेटिंग है, बहुत अच्छी तरतीब है। असल हो क्या रहा जानते हैं? राज की बात आपको बता रहा हूं, अंदर के घर की। अभी चल रहा है मुसलसल जलसा, सबकी आवाज फंसी हुई है। ये बूढ़ा माइक उसको कहां से जवान बनाएगा, इसलिए सारी चोट माइक के ऊपर डाल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इमाम साहब मेंबर पर खड़े हुए और जुमा में खिताब कर रहे थे कि लोगों, शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा है। रमजान का एक एक रोजा रखना है, छोड़ना नहीं।
हर रोजे पर खुदा तुम्हारे ऊपर मेहरबान होगा। अभी बिस्मिल्लाह ही खाता ही खोला था, एक ही रोजा हुआ था कि बस्ती में आग लगाई, पूरी बस्ती जल गई। लोगों ने कहा कि कसूर किसी का नहीं, इमाम का है। इमाम ने ही कहा था मेंबर पर खड़े होकर के रोजा रखो, मेहरबान होगा। कितना बड़ा इम्तिहान हो गया। लोग लाठी में तेल पिला करके रास्ते में बैठ गए, जरा इमाम साहब मिल जाए, अच्छी तरीके से खैरियत लेते। इमाम साहब जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे थे, धीमे धीमे पाँव, तो देखा कि पूरी बस्ती का आदमी लाठी लेकर के बैठा हुआ है। इमाम साहब को समझ में आ गया कि दाल काली ही नहीं है कि पूरी दाल काली है, दाल में काला ही नहीं है, पूरी दाल काली है। लोगों के करीब जैसे ही जाएंगे इतनी लाठी पड़ेगी कि कमर सीधी हो जाएगी। तो इमाम साहब उल्टे पांव भागने लगे। तो लोगों ने कहा, अरे इमाम साहब मुसीबत में डाल करके कहाँ भाग रहे हो? तुम्ही ने कहा था रोजा रखने के लिए, कहाँ भाग रहे हो? जरा नमाज तो पढ़ा दो। तो इमाम साहब ने बात बदलते हुए कहा, मेरा वजू टूट गया, जरा मैं वजू करके आ रहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जब आप नेक काम करेंगे तो खुदा इम्तिहान लेगा, और इम्तिहान जिंदगी भर का नहीं होगा, चुटकी का होगा, लम्हे भर का होगा। उसके बाद अल्लाह ताला जन्नत का दरवाजा आपके लिए खोल देगा। राहत में शुक्र करेंगे, मुसीबत में सब्र करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और सब्र नहीं होगा तो सर पर आसमान को उठा लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अब मैं देख रहा हूँ या ठन्नी चवन्नी जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ये कन्या का भी मामू बन रहा है, दूल्हा का भी मामू बन रहा है। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। हम न करे डर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। दूसरा पैगाम नबी की सीरत और नबी की सुन्नत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जो उसके साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैंने देख लिया है, यूं हाथ उठाया और जोर से झटका मार करके इधर देख रहा है, कोई देख नहीं रहा है, सब समझ में आ रहा है। रोजा 3 तरह का होता है। एक रोजा है उसमें सवाब मिलता ही नहीं। वो रोजा कैसा होता है जानते हैं? खाना बंद, पानी बंद, बाकी सब कुछ जारी। आंख से मोबाइल देख ही रहे हैं, हाथ से कैरम बोर्ड खेल ही रहे हैं, रोजे को पास कर रहे हैं जैसे मूंगफली खा करके लोग टाइम काटते हैं, रोजे को काट रहे हैं। ये रोजा सर से ऊपर नहीं जाता, आसमान पर नहीं जाता, सवाब से खाली होता है, सिर्फ अदा होता है। इसको थर्ड क्लास रोजा बोलते हैं। और दूसरा रोजा है, दाना पानी तो बंद है, मोबाइल से तौबा कर लिया है, संदूक में बंद कर दिया है, पैर गुनाह की तरफ जा नहीं रहा, कान से गुनाह हो नहीं रहा, आंख से गुनाह हो नहीं रहा, दिल में गुनाह का ख्याल तक नहीं है। ये रोजा जमीन से उठता है, परवास करता है, आसमान को चीरता हुआ अर्श तक पहुंच जाता है, अदा भी होता है, कबूल भी होता है। और तीसरा रोजा नबी का रोजा। दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको नबी के रोजे की बार बार जियारत नसीब फरमाए।
पैसा दूसरे का होगा, उम्रा अपना होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? नहीं चाटा उठा दी कुछ ही समझ तक नहीं निकाली। तीसरा रोजा नबी का, चाटा जा नबी का कैसा रोजा होता था? चाटा ध्यान से सुनिए। दिल में दुनिया का ख्याल नहीं, दुनिया का ख्याल निकल गया, दुनिया की मोहब्बत निकल गई। क्या रमजान आया, क्या रोजा रखा कि दुनिया से नफरत हो गई, दुनिया की मोहब्बत निकल गई। सबसे बड़ा रोजा, इस रोजे की खुशबू जमीन से फैलती है, अर्श तक चली जाती है। तीन हस्ती से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं। पहली हस्ती जानते हैं कौन है? खुदा की। इतना मेहरबान होता है, इतना मेहरबान होता है रमजान में 24 घंटे, इतना मेहरबान होता है, इतना मेहरबान होता है कि समंदर को पीछे छोड़ देता, दरिया को पीछे छोड़ देता। दूसरी हस्ती नबी की, और अपने उम्मती पर रमजान में इतने मेहरबान, इतने मेहरबान, इतने मेहरबान कि हवा को पीछे छोड़ दिया। तीसरी हस्ती दुनिया में सबसे ज्यादा मेहरबान, आपके बच्चों के उस्ताद आपसे भी ज्यादा मेहरबान। इस जानवर को इंसान बनाया, इंसान को मुसलमान बनाया, मुसलमान को हाफिज कुरान बना दिया। आपसे ज्यादा मेहरबान आपके बच्चे के उस्ताद। एक जवान नबी की मजलिस में सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने कहा कुछ घोटाला उटाला हुआ है? कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा घोटाला हुआ। कहा क्या हुआ? का रोजे की हालत में था, बीवी के पास चला गया, रोजा टूट गया। अल्लाह के रसूल ने कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कफारा देना होगा, तब गुनाह माफ होगा, एक गुलाम आजाद करना होगा। गले पर हाथ रख करके बोला या रसूल अल्लाह मैं अपनी गर्दन के अलावा किसी का मालिक नहीं। कहा तुमको 2 महीना मुसलसल रोजा रखना पड़ेगा जुर्माने में, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। तो कहा कि या रसूल अल्लाह 1 महीना तो सब्र नहीं हुआ, 2 महीने में क्या क्या नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। कहा या रसूल अल्लाह हम तो सबसे बड़े मिस्कीन है, हम किसको खाना खिलाएं? अल्लाह के रसूल ने कहा बैठ जाओ। 2 टोकरे खजूर हवाले करके कहा कि जाओ गरीबों में बांट दो। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह पूरे मदीने में हमसे बड़ा कोई गरीब हो नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने खजूर दे करके कहा कि जाओ, खजूर भी तुम्हारी, टोकरा भी तुम्हारा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी के नाम पर झूम जाएंगे इंशाअल्लाह, और नबी के काम में घूम जाएंगे इंशाअल्लाह। खैर मचा उनकी अता का, उनकी अता का एक कतरा भी, उनकी सखावत का क्या कहना, वो है बड़े जवान। उनकी सखावत का क्या कहना, वो है बड़े जवान। उनकी अता का एक कतरा भी दरिया लगता है, सामने खुद हो जैसे आका ऐसा लगता है। आप लोग चारों तरफ पंडाल में बैठे हैं, महसूस ये हो रहा है कि लोग खाली कम हुए हैं, बैठे लोग ज्यादा। और इतना गौर से आप हमको देख रहे हैं कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। आप लगाते रहिए नजर, हम उतारते रहते। रोजा लोग क्यों नहीं रखते हैं? 4 बजे से। ध्यान से सुनिएगा, रोजा लोग क्यों नहीं रखते हैं? 4 बजे से। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गए। 15-15 घंटे का रोजा होगा, भूखा प्यासा रहना होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। लेकिन इंसाफ से बताइए, सहरी खा करके आपने रोजा रखा, 7-8 बजे तक पेट में दाना है, पानी है, उसके बाद आप काम धंधे की तरफ ध्यान रखते हैं, इधर ध्यान आपका गया नहीं। उसके बाद आए, नहा लिया, पूरा बदन ठंडा पड़ गया, भूख प्यास का एहसास नहीं रहा। उसके बाद
آپ سو گئے آپ کی آنکھ کھلی ظہر میں، آپ ظہر میں سو گئے آپ کی آنکھ کھلی عصر میں، اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کتنی دیر کا روزہ ہے؟ اللہ کے بندے ہمت کرو روزہ رکھنا آسان۔ دوسری وجہ آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ کیا کہتا ہے میرے پاس علم ہے، ہم کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، جاہل روزہ رکھے۔ ہمارے گھر میں دانا پانی ہے، جس کے گھر میں دانا پانی نہیں وہ روزہ رکھے، روزے کی حالت میں ہم سے بھوکا مرا نہیں جاتا۔ یہ جملہ بارود نہیں ہے، یہ بم ہے، زبان سے ادھر نکلتا ہے، سینے سے ادھر ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، توڑ دیتا ہے، نہ بچہ گنہگار نہ بچے کا ماں باپ گنہگار۔ لیکن بچے نے روزہ رکھا، ماں نے کہا بیٹا توڑ دو اسکول ہے، بچے نے توڑ دیا۔ بچے نے روزہ رکھا، باپ نے کہا کہ بیٹا عید کے بعد تمہاری شادی ہے، گال پچک جائیں گے، بچے نے توڑ دیا۔ گناہ کس کو ہوگا؟ بچے نے رکھا روزہ، بچے نے توڑا، کسی کو گناہ نہیں۔ بچے نے روزہ رکھا، ماں باپ نے کہا توڑ دو، توڑ دیا۔ بچے تو گنہگار نہیں ہوں گے، بچے کی طرف سے ماں باپ کو گناہ ہوگا۔ گناہ کبیرہ صغیرہ نہیں، گناہ کبیرہ ہوگا۔ آخری بات بتا رہا ہوں، ابھی آپ کسی سے سلام کیجئے، مصافحہ کیجئے، خیریت معلوم کیجئے۔ ہر بوڑھا بولے گا میں خیریت سے ہوں۔ شوگر اوگر ہے؟ نہیں ہے۔ پریشر ورشر ہے؟ تو نہیں ہے۔ ٹبا ٹب گھٹا گھٹ رسول کا۔ اور جب یہ شعبان ختم ہونے والا ہوگا، 1 تاریخ بچے گی، رمضان شروع ہونے والا ہے، تو دیکھیے گا چالاک بوڑھے کو 1 پوٹری دوائی خرید کر کے ٹیبل پر رکھ دیا ہے۔ رمضان میں کھلے عام کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ لوگ جب کہتے ہیں کہ بھائی آپ بوڑھے ہو کر آپ روزہ نہیں رکھتے، تو کہتے کیا کیجئے گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، شوگر ہے، پریشر ہے۔ یاد رکھیے یہ بہانہ سب سے چلے گا، جو دل کا حال جانتا ہے اس خدا سے کوئی بہانہ نہیں چلے۔ ایک مسئلہ بتایا گیا جلسے والے سے کہ جس نے آنکھ سے چاند کو دیکھا اس پر روزہ فرض ہو گیا۔ آنکھ سے جس نے بھی چاند کو دیکھا روزہ فرض ہو گیا۔ تو ایک آدمی سمجھدار تھا آل کا، بولا کہ میں چاند دیکھوں گا، سرکار کر کے چلتا تھا۔ رات میں پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی، جلسے کا کھانا زیادہ کھا لیا تھا، پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی، جنگل میں گیا، آسمان پر چاند تھا، اس کا عکس پانی پر آ رہا تھا۔ جب حاجت سے فارغ ہوا تو طہارت کے لیے جیسے ہی پانی کے قریب آیا اس کو چاند نظر، بولتا انا للہ، یہ پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اس سال علاج کریں گے، اگلے سال روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے تام لے کر۔ سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے تام لے کر۔ نیت سبھی کی ہو یہ، نیت سبھی کی ہو یہ، کرنا ہے اعتکاف اب چلتے رہے نبی جی، جس کو دوام لے کر۔ رمضان آ رہا ہے، پیارے سیام لے کر، مہمان آ رہا ہے، پیارا قیام لے کر۔ بڑا خوبصورت جلسہ، آدھا نکل گیا، آدھا باقی ہے۔ جب قاری صاحب پڑھ رہے تھے تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں سمجھ گیا کہ میری باری تو آ ہی نہیں رہی ہے، پتہ نہیں جلسے کا کیا حشر ہوگا، میرا کیا حشر ہوگا۔ لیکن آپ جیسے محبت میں سننے والے اگر زندہ رہیں تو آدمی صبح تک جلسہ سناتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے کہ فجر کے بعد تک جلسہ سنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں مجھے
समझ में आ गया। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, रमजान की अजमत के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। रमजान में अगर कोई मुसलमान मर गया, बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा पापी, उसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा, हर गुनाह करके बैठा, ऐसा मुसलमान रमजान में मरा है, किस्मत उसकी है कि इस्लाम के साथ मरा है, किस्मत मुकद्दर उसका है कि वो रमजान में मरा है, उसको फायदा होगा। तो हदीस कहती है कि दो फायदे होंगे। रमजान में दोज़ख का दरवाजा बंद है, जन्नत का दरवाजा खुला है। अगर कोई मुसलमान मरा है, लाख गुनहगार है, मगर किस्मत से रमजान में मरा है, सीधा जन्नत में दाखिल होगा। रमजान की बरकत से अज़ाबे कब्र भी नहीं होगा। ये तो मुसलमान का हाल है भाई। अगर कोई गैर मुस्लिम मरे, रमजान का महीना है, मुशरिक मरा है शिर्क के बगैर नहीं, शिर्क के साथ, काफिर मरा है कुफ्र के बगैर नहीं, कुफ्र के साथ, उसको रमजान का फायदा होगा। तो लिखा कि कुफ्र और शिर्क की वजह से जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, मगर एक फायदा होगा, रमजान का सदका पूरे रमजान अज़ाबे कब्र से महफूज हो जाएगा, चाहे काफिर हो चाहे मुशरिक हो। जब असर के बाद आप दस्तरखान लेकर के बैठते हैं रोजा खोलने के लिए, तो उड़ीसा का दस्तरखान मशहूर है। इतना बड़ा दस्तरखान होता है कि दस्तरखान देख करके ही पेट भर जाता है। भाई कहाँ से खाए, इतना बड़ा दस्तरखान होता है। दस्तरखान लग गया है, रोजा खोलने में 5 मिनट का टाइम है। दस्तरखान पर जब आदमी बैठता तो देखता कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, पपीता कहाँ है। पहले निशाना बना लेता है किस किस को उठाना है अजान का। और जैसे ही अजान होती है, खटाखट खजूर लिया, खटाखट पपीता खाया, 5 मिनट में पूरे दस्तरखान को समेटना है। उसके वक्त क्या होता है, उस वक्त कैसा मजा आता है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब दस्तरखान पर आदमी फल फ्रूट को देखता है तो आंख ठंडी होती है, और जब हलक के नीचे खजूर उतरती है, ठंडा पानी उतरता है तो रग रग सैराब हो जाता है, दिल को सुकून मिलता है, आंख ठंडी होती है। एक मजा, 1 मिनट में जो मजा मिलता है वो साल भर नसीब नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह की मेहरबानी पर एक वक्त आएगा जो मजा मुसलमान को जन्नत में मिलेगा, वो मजा 1 मिनट का रमजान के इफ्तार खोलने में मिलता है। इससे भी बड़ा मजा कहाँ मिलेगा, दुनिया में नहीं, जन्नत में। कब मिलेगा? जन्नत को अपनी आंख से देखेगा, फिर भी वो मजा नहीं। जन्नत की नेमत को अपने हाथ से खाएगा, फिर भी मजा नहीं। जन्नत की औरत से निकाह करके बैठ गया, फिर भी वो मजा नहीं। जब जन्नत का बनाने वाला खुदा सामने आएगा और अपनी आंख से खुदा को देखेगा, खुदा का दीदार होगा, तो जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा। एक गैर मुस्लिम बोला, मैं मुसलमान हो जाऊंगा, मुझको क्या मिलेगा? एक आलिम दीन खड़े हुए, जन्नत मिलेगा। कहा जन्नत के बदले तो मैं मुसलमान नहीं हो सकता, जन्नत से बेहतर है। तो वो आलिम भी तो आलिम थे। करे अल्लाह के बंदे, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं जन्नत से बढ़कर के जो चीज है उसकी जमानत लेता हूँ। उसने कहा कि बताओ कि जन्नत से बढ़कर के है क्या चीज? तो जन्नत से बढ़कर के खुदा का दीदार है। खुदा के दीदार के नाम पर तड़प गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। एक बीमार आया डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब गरीब आदमी है, जेब में पैसा नहीं है, फ्री में इलाज करता, आज तुम मेरे काम आ जाओ, कल हम तुम्हारे काम आ जाओ। तो डॉक्टर बोला तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारा इलाज तो हम कर देंगे, लेकिन तुम मेरे किस काम के? तो डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब जितना काम का आदमी मैं हूं उतना काम का कोई भी नहीं है, आप फ्री में मेरा इलाज कर दो, आज मेरे काम आ जाओ, कल हम तुम्हारे काम आ जाएंगे। हम कैसे काम आएंगे? जब जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र हम ही खोदते, कफन हम ही पहनाते, गुस्ल हम ही करते,
तो डॉक्टर घबरा करके बोला कि तुम्हारा इलाज क्या करेंगे, तुम्हारे पूरे खानदान का फ्री में इलाज करेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान के एक एक रोजे की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। रमजान में सो जाएंगे, चांद रात में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उठाए और ये उठाए 2026 तक उठाते रहे इंशाअल्लाह। कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त कमाया, इसी में कॉल वाला देंगे वो पागल की तरह उसी को देंगे। आई सब भूजो का है ना, ये आया अब लखनऊ से गुलाबर। अरे भाई माइक वाले आप घबराइए मत, आपका माइक बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। ये कमेटी वाले आपको पूरा पैसा देंगे, वो बेचारा घबरा गया कि पैसा काट ले। सोच रहा है कि पैसा कट जाए। नहीं, पंखा उनका का चक्कर छोड़ दिए, वो पंखा चलता रहेगा फिर भी पसीना छोड़ दिए। मेरा पसीना बहेगा तब ना हमको कीमत मिलेगी। कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की। ये सरमाया भी अपने, ये सरमाया भी अपने, ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त कमाया, इसी में इसी में रात इकाई हजारों माह से अफजल कि जिसमें चश्मे रहमत से, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। मेरी आदत है कि मैं जब भी उड़ीसा आ रहा हूँ तो मैं ये पैगाम जरूर सुनाता हूँ, क्योंकि उड़ीसा का जलसा मुझे जिंदगी भर याद रहता है। किसी भी कोने में जलसा हो जाए, किसी भी मोहल्ले में जलसा हो जाए, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन इतनी इज्जत होती है, इतनी मोहब्बत मिलती है कि वो साल भर वो जलसा याद रहता। कहीं का जलसा याद रहे या ना रहे, वहाँ का जलसा याद रहता। तो मैं उड़ीसा के लिए ज़रूर ये पैगाम इतनी दूर से लेकर के आता हूँ, इसको सुना करके जाता हूँ, ताकि मेरी नज़र में जितनी इज्जत इनकी तरफ से हमको मिलती है, अल्लाह उतनी इज्जत इनको अपनी तरफ से अता फरमाए। मैं ये पैगाम आपको सुनाता हूँ, 3 मिनट का पैगाम है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे, अपना बचाएंगे, इफ्तार पार्टी में जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, इसको ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये मैं मुताले की बात नहीं कर रहा हूँ, तजर्बे की बात कर रहा हूँ, और मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी ले करके बात कर रहा हूँ कि आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। गारंटी। 2024 चला गया है, 2025 चल रहा है। अगर आप फेल हो गए तो मेरा गिरेबान कभी भी आप पकड़ सकते हैं। हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। गारंटी लेकर के जा रहा हूं मसनदे रसूल पर, और ऑनलाइन गारंटी ले रहा हूं। ऑनलाइन गारंटी लेकर के जा रहा हूं। आपके हाथ पर भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा। जरूरत खत्म, पैसा बाकी। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम, हलाल कमाना। अगर आप हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं। दूसरा काम, हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। पैसा है नहीं, दूसरे को देख कर दिखा करके पैसे को पानी की तरह बहाना नहीं है।
एक साल हिसाब से पैसा खर्च करके दिखाइए, एक साल हलाल कमा करके दिखाइए। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, मेरी जबान होती तो झूठी हो जाती। कुरान और हदीस की रोशनी में कह रहा हूं, झूठा हो नहीं सकता। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। खुदा किस पर ज्यादा मेहरबान है, इस नुक्ते पर गौर कीजिएगा। अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर मेहरबान है? इस जलसे में माशाअल्लाह मैंने देखा कि रुमाल बिछा हुआ था, मदरसे का चंदा था, तो मोटा पैसा लोगों ने बचाया है और छोटा पैसा ला करके दे दिया, उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखाया। खैर, अल्लाह ने आपको जिस पैसे की तौफीक दी, आपने उस पैसे को दिया। आपने दिल के खुलूस से अगर थोड़ा पैसा दिया है, फिर भी वो बहुत पहाड़ के बराबर है। अल्लाह आपके सदके को कबूल फरमाए। अमीर पर ज्यादा मेहरबान है कि गरीब पर ज्यादा मेहरबान है? आपको समझ में आ जाएगा। पैसा वाला अल्लाह की निगाह में है, सीसीटीवी कैमरे के अंदर है। जब अमीर आएगा खुदा के पास, तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। 2 सवाल का जवाब जब तक मुकम्मल नहीं होगा, 1 इंच अपना पैर हिला नहीं सकता। लेकिन जब गरीब आएगा खुदा के पास, तो माल के बारे में नहीं पूछेगा, हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है, उतना वो अमीर पर भी मेहरबान नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जो लेना है खुदा से लेंगे इंशाअल्लाह, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। और एक राज की बात, ये रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे इसको मगर याद करके ले जाइएगा। आ रहा है रमजान। रमजान जब आएगा तो आपका बच्चा बोलेगा कि कपड़ा खरीद दो, आपकी बीवी बोलेगी कपड़ा खरीद दो, आपके घर के लोग बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे कपड़ा खरीद दो। मैं आपको नसीहत करता हूं, कुछ याद रहे या ना रहे, आपको देखना है कि ज़कात के पैसे से कपड़ा नहीं खरीदना है, फितरे के पैसे से कपड़ा खरीदना नहीं है। अपना पैसा थोड़ा है, मामूली कपड़ा खरीदना है। कपड़े खरीदने के लिए किसी से कर्ज नहीं लेना है और पैसे को पैसे की तरह रखना है। ईद को इबादत बनाना है, त्योहार नहीं। ईद का पैसा बचा लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं उड़ीसा से बाहर की भी गुर्बत को अल्लाह मिटा देगा। आपको आंख बंद करके पैसा खर्च नहीं करना है। अगर आपने ज़कात का पैसा अपने कपड़ा खरीदने में लगा दिया, फितरे का पैसा, गरीब का पैसा, अपना पैसा कपड़ा खरीदने में लगा दिया, याद रखिए रमजान पा करके भी अल्लाह जिंदगी भर जलीलो खाक कर देगा। इसलिए ज़कात निकाल दीजिए जिसका जो हक है, फितरा निकाल दीजिए जिसका जो हक है। उसमें अगर पैसा बचे तो कपड़ा खरीदिए, नहीं बचे तो छोड़ दीजिए। कपड़ा खरीदना कोई फर्ज नहीं है और कर्ज लेकर के जलील होना हराम है। इसलिए पैसे को हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। एक आदमी था, एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, रोजा रखता नहीं था और बीवी से कहता था मैं रोजे से हूं। वो रोजा तोड़ता कैसे था, आपको सुनकर के हैरत होगी। आप लोग बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए, जाने का माहौल मत बनाइए, जलसा आपका चला जाएगा। वहां क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा होगा। आप वहां से आइएगा भी तो पता चलेगा कि 2 लड़का आपस में लड़ गए, यही होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। आप लोग बैठे रहिए। आप लोग बैठ गए तो जलसा आपका रहेगा, अगर आप लोग चले गए जलसा बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं है वहां, कोई मामला नहीं है, शैतान वहां अपना काम कर रहा है। हम लोग यहाँ जलसा सुन रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, शैतान वहां अपना काम कर रहा है। उसको छोड़ दीजिए, वो लोग आ जाएंगे, अभी फौरन आ जाएंगे। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जलसा मुश्किल से 15 मिनट बचा हुआ है, इससे ज्यादा बचा हुआ नहीं है। जलसा आपका निकल चुका है, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आदमी रोजा रखता नहीं था, लेकिन बीवी से कहता था मैं रोजे से हूं। इधर देखिए, आप कम से कम अपने मेहमान की इताअत कीजिए। मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं सुना रहा हूं, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप सुन रहे हैं। आप सिर्फ हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ आप देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, ये इबादत में लिखा जा रहा है। उधर मत ध्यान दीजिए,
दायां बायां तो देखना ही नहीं, सिर्फ हमको देखिए और मैं आपको देख रहा हूं, जलसा आपका बच जाएगा, गारंटी। अगर आपने इधर उधर दायां बायां देखना शुरू किया, जलसा इसी वक्त बर्बाद हो जाएगा। तो एक आदमी रोजा रखता नहीं था, करता क्या था कि रोजा तोड़ता था, बीवी से कहता था मैं रोजे से, इफ्तार पर बैठ जाता था, दस्तरखान पर बैठ जाता था। मैं देखा ना, सब लोग आगे, वहां कोई बात नहीं है, दस्तरखान पर बैठ जाता था और चाटना शुरू करता था, पूरा दस्तरखान चाट जाता था। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, न फटता था न भरता था। लेकिन वो रोजा कैसे तोड़ता था, बहुत हिसाब से तोड़ता था। जब उसको भूख लगे प्यास लगे तो दरिया आ जाए नहाने के बहाने से, और डुबकी लगाए मुंह खोल दे, जी भर करके नीचे पानी पी ले, और ऊपर आकर के पूरा दस्तरखान चढ़ जाए। 99 दिन चोर के एक दिन कुतवाल का। आदत के मुताबिक जैसे ही डुबकी मारी रोजा तोड़ने के लिए, जैसे ही मुंह खोला, पानी जाने के बजाय टिंगड़ा मछली। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। डॉक्टर के पास जब लाया गया ऑपरेशन के लिए तो डॉक्टर परेशान कि किस मनहूस को लेकर के आया। आदमी मुंह खोल करके अगर सोएगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे गई? तब पता चला कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह, अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर तोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। सिर्फ दो पैगाम रह गया। माशाल्लाह ये माइक वाला क्या सेटिंग करता है भाई। जब मैं शुरू हो जाता हूँ तरन्नुम में तो ये भी तरन्नुम में शुरू हो जाता है, और जब मैं तकल्लुम में शुरू हो जाता हूँ तो ये भी तकल्लुम में शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग। बहुत अच्छे ऑपरेटिंग कर रहा है। खैर माशाल्लाह, इसको इनाम तो मिलेगा ही, इनाम आप लोग जरूर इसको दीजिएगा। असल में मुकर्रिर को खूबसूरत ये माइक वाले ही बनाते हैं, मुकर्रिर की आवाज़ को खूबसूरत यही लोग बनाते हैं। अल्लाह इनको खूबसूरत बनाए। जिंदा है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा। सरकारी किसी भी इदारे में जाइए आप, स्कूल में, हॉस्पिटल में, यहाँ वहाँ कहीं भी आप जाइएगा तो उसके बोर्ड पर, दीवार पर गौर से देखिएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं नहीं लिखा रहता है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। देखा आपने? देखा है तो बताइए, ससुराल में देखा होगा, लेकिन आपने कहीं नहीं देखा है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। आपने ये जरूर देखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जानते हैं क्यों? इसका राज आपको बता रहा हूं। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा है, तो माँ भी कहती है आने दो आने दो आने दो, बाप भी कहता है आने दो आने दो आने दो। और आने वाला कितने नंबर का है? 11 के बाद का। ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर, 1 दर्जन आ गए। न माँ घबरा रही है न बाप घबरा रहा। आने दो, बरकत है। अगर अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा नहीं बेटी है,
تو باپ کہتا ہے جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال. انجیکشن مارا, بچہ گر گیا. بچی کو گرانے کے نتیجے میں 1 سال میں ہندوستان میں 10 لاکھ لڑکی ماری جاتی ہے. یہ مارنے والے کوئی اور نہیں ہوتے, اپنے ماں باپ ہی ہوتے ہیں. اس لیے لکھا رہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, کہیں نہیں لکھا رہتا ہے بیٹا بچاؤ بیٹا پڑھاؤ. خدا نہ خواستہ اگر بیٹے کے لیے بہو نہ ملے اڑیسہ میں تو کہاں جاؤ؟ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. دوسرا ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. جلسہ آپ کا پورا نکل چکا ہے, ہاتھی پاس ہو چکا ہے, صرف دم پھنسی ہوئی ہے. ماشاءاللہ ایک ہی جھٹکا تو ماریں گے, اس کو پاس کر کے ہی بیٹھے. سر گاڑ کر کے بیٹھا ہوا تھا, تسبیح میں تھا, سبحان اللہ کر رہا تھا, سر گاڑ کر کے بیٹھا ہوا تھا. ادھر سے خبر آئی کہ تم کو بیٹا ہوا ہے, تم بیٹے کا باپ بنے. سر گاڑ کر کے تسبیح میں تھا. جیسے ہی خبر آئی اب سر اٹھا رہا ہے, سینہ تان رہا ہے, آسمان کی طرف دیکھ رہا. جبریل تو نہیں آ رہے. بیٹا کے نام پر سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, سر اٹھا لیتا ہے, مٹھائی کھاتا ہے. کیا بات ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. سر اٹھا کر کے بیٹھا ہوا تھا, ادھر سے خبر آئی کہ تم کو بیٹی ہوئی ہے. بیٹی کا نام سن کر کے ایسے سرگاڑتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ سیدھا مکہ پہنچ گیا, بغیر حج کے واپس نہیں آئے. بیٹا پیدا ہو تو مٹھائی بٹتی ہے, بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آدمی مایوس ہو کر کے دم گھٹنے لگتا ہے. دوسرا ستم, تیسرا ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. چاہے اڑیسہ ہو, چاہے بنگال ہو, چاہے آندھرا پردیش ہو, ہر جگہ کا مسلمان ایک فارمی کا ہے. جب عمرہ کرنے کے لیے جائے گا, حج کرنے کے لیے جائے گا تو بیٹا کو بلائے گا پرائیویٹ میں. بیٹا میں عمرے پر جا رہا ہوں, پتہ نہیں زندہ ہوں گا یا جنازہ اٹھے. بیٹا یہ زمین کے مالک بھی تم ہو, اکاؤنٹ بیلنس کے بھی مالک تم ہو, زمین مکان دکان سب کے مالک تم ہو. بیٹا کو مالک بنا دیا, بیٹی کو پوچھا تک. اس کے بعد جب وہاں سے واپس آیا تو کھجور لے کر کے آیا, زمزم کا تبرک لے کر کے آیا. تو بیٹا کو نہیں بیٹی کو بلایا, بلا کر کے دونوں ہاتھ پھیلانے کے لیے کہہ رہا ہے یہ مدینے کا تبرک ہے قبول کر لو, یہ مکے کا زمزم ہے قبول کر لو. حدیث میں لکھا ہوا ہے جس نے بیٹا کو مالا مال کیا, بیٹی کو کنگال کیا, حج 72 مرتبہ کر لے, نہ حج قبول ہے نہ جنت میں جانے کی گارنٹی ہے. آخری ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. ادھر بیٹی کا باپ بیٹھا ہوا ہے, ادھر بیٹی کا باپ بیٹھا ہوا. تو بیٹے کا باپ کہہ رہا ہے بیٹی کے باپ سے, سمجھے نیچے سے تو سب کچھ دے رہے ہیں, اوپر سے بھی کچھ بڑھا دیجیے. اب اس کا سر چکرا گیا. پیسہ دیا نگد, گاڑی دیا نگد, سامان نگد دیا, سب کچھ نگد دیا, نیچے سے دے دیا, اوپر سے کیا بڑھانے کے لیے بول رہا ہے. وہ بیچارہ ڈر کر کے کہتا ہے کہ حاجی صاحب سب کچھ تو میں نے دے دیا, نگد دیا, اور آپ نے میرا مہر ادھار رکھا, اور اس کا ٹائم بھی مقرر نہیں ہے. اوپر سے کیا بڑھانے کے لیے بول رہے ہو. تو کھسیا کر کے کہتا ہے آپ کو اشارہ سمجھ میں نہیں آتا, 100 گاڑی بارات لے کر کے آؤ, اس کے تیل کا پیسہ بھی آپ کو لگے گا, کرایہ بھی آپ کو. حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے اپنے بیٹے کی شادی اور اپنی شادی فری میں کریں گے, خدا پہ بھروسہ کر کے کریں گے انشاءاللہ. اچھا اس میں غور کیجیے, وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں جن کی شادی ہو چکی ہے. اگر یہ اتنے سارے چینل والے ہیں, اگر ان کے ہاتھ کو بیوی تک پہنچا دیں تو بیوی زہر کھلا کر کے خدا تک پہنچا دے گی کہ نہیں؟ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے, کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے. رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول, کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول, کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول. ڈھول کا یہ بول صرف دیکھ لے, اے دل زبان کھول, صرف دیکھ لے اے دل زبان کھول.
ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। सुन्नत के मुताबिक शादी होगी और अल्लाह पर भरोसा करके शादी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपना मेहमान दूसरे का दस्तरखान, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से मैं दे देता हूँ, उसके बाद ये जलसा मेरे हिस्से का मुकम्मल हो रहा है। और ये उड़ीसा में पहली दफ़ा है कि 12 बज जाने के बाद भी लोग कुर्सी छोड़ करके जाने हैं। मैं तो अंदर अंदर से मना रहा कि किसी तरह ये लोग कुर्सी छोड़े और मुझे 9-11 हो जाए, लेकिन कुर्सी छोड़ नहीं रहे। 12 बज जाने के बाद ये जलसा उड़ीसा का है, तारीख में लिखा जाने वाला जलसा है। जबकि उड़ीसा की तारीख है कि अगर खा पी करके लोग बैठे तो 10-11 बजे एक एक करके निकलना शुरू हो जाते, उसके बाद पूरा काफिला खाली हो जाता है। कमाल है भाई, दिल से दुआ करता हूँ, पैगाम खत्म हो रहा है, प्यास बाकी है। अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक इस जलसे को कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। दूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं है। रमजान आए चला जाए, शबे कदर आए चली जाए, मगर 2 आदमी की माफी नहीं होती। इस मजमे में भी वो आदमी हो सकता है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। रमजान आता है चला जाता है, शबे कदर आती है चली जाती है। जब रमजान में माफी नहीं, शबे कदर में माफी नहीं, तो साल भर में कब माफी होगी? ऐसा आदमी इस मजमे में भी है। वो कौन है जो जिना करता है, मुंह काला करता है, तौबा नहीं करता। जब वो जिना करता है, मुंह काला करता है, तो सीने से ईमान निकल करके सर पर सवार हो जाता। उस हाल में अगर मौत हो जाए तो बगैर ईमान के मौत होती है। और जब आदमी दारू पीता है, दारू पीने के नतीजे में उसका कुफ्र सर चढ़ करके बोलता है, ये इतने बड़े पापी हैं। रमजान आया चला गया, माफी नहीं हुई। जब रमजान में माफी नहीं तो कभी भी माफी। एक बात गौर कीजिएगा, जब तक यहाँ पर आपका सर रहेगा, गौर कीजिएगा। रमजान में शैतान कैद है, फिर दारू कैसे लोग पीते, जिना कैसे करते, ये राज बता रहा। तो लिखा कि शैतान कैद है मगर नफ्स आजाद है। नफ्स के असर से, नफ्स की आजादी से गुनाह हो रहा है रमजान में। रमजान में गुनाह शैतान की वजह से नहीं हो रहा, नफ्स की वजह से हो रहा है। आपने बाजार में देखा होगा कि लोहार है, लोहार की दुकान है, वो भाथी खींचता है, भट्टी में गर्म होती है, लोहा डालता है, लोहा बिल्कुल सुर्ख हो गया, बगल में बाल्टी है, उसमें ठंडा पानी है। गर्म लोहे को निकाल करके जैसे ही वो बाल्टी में डालता है, छंग से बोलता है। जब लाली खत्म हो जाती, लोहे को निकाला जाता, जब उस पर हाथ रखा जाता है तो गर्मी महसूस होती है। 11 महीना गुनाह में गुजरा, वो असर बाकी रह गया। रमजान आया फिर भी तौबा नहीं किया, जिना किया, दारू पिया, और उसका कुफ्र सर चढ़ चढ़ के बोलता है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक औरत ने रात के सन्नाटे में एक जवान को चुपके से दरवाजे के अंदर लिया, बंद कर दिया और कहा कि दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब तुम एक गुनाह करोगे। कहा कौन सा गुनाह? कहा मुझसे जिना करो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि जिना नहीं हो सकता। औरत चालाक थी, वो पॉइंट पर पहुंच गई, जब तुम जिना नहीं कर सकते तो एक गुनाह और करना होगा, मेरा मासूम बच्चा उसको कत्ल करना होगा। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि ये गुनाह भी हमसे नहीं हो सकता। औरत पॉइंट पर पहुंच गई, दारू की बोतल लेकर के जवान के हाथ में दे दिया। ये सबसे छोटा गुनाह है, इसको तो करना ही पड़ेगा, तब तो तुम्हारी जान बचेगी, दरवाजा खुलेगा। जवान ने सोचा कि जिना से छोटा गुनाह दारू है, कत्ल से छोटा गुनाह शराब है। जैसे ही उसने बोतल लिया, हलक के नीचे उतारा,
और उसका नशा जैसे ही सर पर आया, एक शराब आई, उसने पहली फुर्सत में औरत से जिना किया, मासूम को कत्ल किया। एक शराब आई, सारे गुनाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी बचेंगे, समाज को बचाएंगे, और रमजान से पहले तौबा करेंगे सच्ची पक्की इंशाअल्लाह। रमजान भर छोड़ देंगे, उसके बाद देखा जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहा अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना गए हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना गए हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। उड़ीसा की जब भी हमको तारीख मिलती है, हमारी क्या आदत है कि एक महीना में एक इलाके में एक ही जलसा देना। लेकिन उड़ीसा की तारीख जब आती है, तो अगर कोई लिखाता है कि उड़ीसा में जलसा है तो मैं झट से लिख लेता हूं। उड़ीसा में जलसा है तो मैं झट से लिख लेता हूं। इसी वजह से पिछले साल ऐसा हुआ, मैंने उधर का भी जलसा लिख लिया एक ही तारीख में, इधर का भी जलसा लिख लिया एक ही तारीख, और उड़ीसा कह के लिख लिया, जगह का नाम था नहीं। अब एयरपोर्ट में इसको भी बुला लिया, उसको भी बुला लिया। वो उधर ढूंढ रहा है, इधर ढूंढ रहा है, जिसको मौका मिला वो लेकर के उड़ गया। उसके बाद फोन आता है कि आप कहाँ, क्योंकि आपकी गाड़ी, हमारी गाड़ी में कहाँ। पता चला कि हम कहीं ये कहीं। उड़ीसा का जलसा हम लोग मोहब्बत में शौक में लिख लेते हैं, नाम तक नहीं पूछते। लेकिन ऐसा सबक मिला है कि अब नाम पूछे बगैर लिखते भी नहीं। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे उन बेचारों को, बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं। वो समझते हैं कि क्या कि मेरी वजह से जलसा कामयाब होता है। अरे मेरी कोई हकीकत नहीं, ये तो मेरी मोहब्बत आपके दिल में अल्लाह ने डाल दी। डालने वाला कौन है? वो है, उसने मोहब्बत डाली, उसने मेरी इज्जत बढ़ाई, वरना मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं उन बेचारों के वास्ते दुआ करता हूँ जो इतनी अकीदत से बुलाए और मुझसे धोखा हो गया, भूल हो गई, उस भूल का उन्होंने नुकसान उठाया। मैं इस जलसे में उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से उनको माला माल। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, उड़ीसा आता हूँ। 24 तारीख को है। मैं इससे परेशान नहीं हूँ कि आप खाते कैसे हैं, कमाते कैसे हैं। यहाँ कोई भी आता है, उड़ीसा में कोई भी आता है, यहाँ से जब जाता है तो इस्तेकबाल को लोगों से बताता है जलसे में भी कि इस्तेकबाल मेहमान का सीखना है तो उड़ीसा में जाकर के सीखो। कि मेहमान सोता रहता है और वो जागते रहते हैं, और फ्लाइट का टाइम हो गया, जगाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, मकाम पर छोड़ाते हैं। रिकॉर्ड कहीं नहीं, कहाँ के हो? और जगह का जानते हैं रिकॉर्ड क्या है? दूल्हे की तरफ बुलाते हैं, बारात की तरफ भेजते हैं।
और जलसा खत्म होने के बाद मुकर्रिर की हैसियत पड़े हुए अखबार की तरह कोई पूछ सकता है, लेकिन वाहिद उड़ीसा है। मैं दिल से आपको दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को, आपकी नस्लों को इल्म से माला माल फरमाए, हुनर से माला माल फरमाए, अखलाक से माला माल। आप लोग दिखाते नहीं है, आप लोग का इखलास बोलता है, सर चढ़ करके बोलता है। तो इतनी दूर जो मैं आया आपको जलसा सुनाने के लिए, मैं इससे परेशान नहीं हूँ कि आप खाते कैसे हैं, कमाते कैसे हैं। मैं परेशान इससे हूँ कि कहीं आप लोग घर के झगड़े से, पड़ोसी के झगड़े से, जमीन के झगड़े से, मसलक के झगड़े से अदालत में पहुंच करके कहीं तबाह बर्बाद हो जाए। मैं आपको दुआ दे करके जाता हूँ कबूलियत की घड़ी में, आखिरी पैगाम सुना करके कि अल्लाह आप लोगों को मोहब्बत की दौलत से माला माल फरमाए, इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से माला माल फरमाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ 3 मिनट का, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जीते जी गुनाह करेंगे, मरते वक्त माफी मांगेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पूरा डिस्ट्रिक्ट मारा, समझ में आ रहा है? दिल से भी यही है, दिमाग से भी है। 1 मिनट में झगड़ा कैसे होता है, 1 मिनट में झगड़ा कैसे खत्म होता है, ये सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुमान हमेशा अच्छा रखिए, गुमान अगर अच्छा रखेंगे दूसरे के लिए तो कभी झगड़ा नहीं होगा। गुमान जैसे ही गलत होगा, झगड़े का दौर शुरू हो जाएगा। और जब घर में आपके घर झगड़ा है तो कभी तरक्की नहीं करेंगे आप, मैं लिख करके दे रहा हूँ। घर में जब तक झगड़ा रहेगा आपको तरक्की नहीं होगी, मैं लिख करके जा रहा हूँ। घर का झगड़ा खत्म, तरक्की जमीन से लेकर के आसमान तक। एक आदमी आया झाड़ फूक करने वाले के पास, बोला मुझको एक ताबीज दे दो। कहा क्यों? कहा मेरा बेटा जेल में, जेल से छूट जाए, ताबीज दे दो। कहा तुम्हारा बेटा जेल क्यों गया? कहा किसी को गोली ठोक दिया। अब दिल पर हाथ रख करके बताइए ताबीज का फायदा होगा? एक आदमी आया झाड़ फूक करने वाले के पास, बोला कि मेरे घर में खुद ब खुद आग लग जाती है, पता नहीं चलता किसने लगाई, कैसे जलकर राख हो गया। तो वो समझदार दीनदार आमिल था, वो बोला कि तुम्हारे घर में गुनाह हो रहा है, दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले, दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में मुंह डाल करके देखो। दूसरे पर इल्जाम लगाने से पहले अपना जायजा लो। तुम्हारे घर में गुनाह हो रहा है, जब तक वो गुनाह खत्म नहीं होगा आग का सिलसिला जारी रहेगा। जब गौर करके आदमी अपने गिरबान में मुंह डाल करके देखा तो जो घर का बूढ़ा था वही दारू पी रहा था। कसूर अपना है, इल्जाम हम दूसरे के सर रखते हैं। जो पॉइंट है उस पर मैं आपको लेकर के आ गया। अभी मस्जिद में देखिएगा टोटी होती है, टोटी उसको खोल करके लोग वजू बनाते हैं। खटाखट पानी आता है, 1 मिनट में पानी आया और 2 मिनट में वजू हो गया, इतना, फिर भी लोग मस्जिद नहीं आते। एक जमाना था 50 साल पहले, कुएं का जमाना था, खींच करके पानी निकालना पड़ता था, पसीना छूट जाता था, फिर भी लोग खींच खींच करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ जाते। सुभान अल्लाह, क्या जमाना। उसके बाद जमाना बदल गया, हौज बन गया, बना दिया गया बगल में छोटी छोटी नाली, हौज में पानी जमा, उसमें लोग वजू करने लगे। तो कभी कभी ऐसा होता था छपकली गिर जाती, जब वो डूबने लगे तो नमाजी को तरस आए, उंगली का सहारा लगाए, उसको बचा जाए। कभी कभी ऐसा होता था कि बिच्छू गिर जाए, जब बिच्छू गिर गया नमाजी को तरस आया, उंगली बढ़ाया कि इसको तिनके का सहारा मिल जाए, डूबते हुए बिच्छू ने डंक मारा हाथ की, फिर दोबारा बढ़ाया, फिर उसने दोबारा डंक मारा, फिर तीसरी बार बढ़ाया, तीसरी बार डंक मारा। बगल के आदमी ने कहा मर जाने दो उस जालिम को, उसको क्यों बचाते हो, जिसको भले बुरे की तमीज ही नहीं है कि कौन उसका दोस्त है कौन उसका दुश्मन है। मर जाने दो, डूब करके मर जाने दो। उस आरिफ ने कितनी बड़ी बात कही है, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। आपके घर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाए। उसने कहा यार वो बिच्छू बुरा है, बुरा हो करके भी बुराई नहीं छोड़ता, मैं भला हो करके भलाई कैसे छोड़ सकता। सुभान अल्लाह। कीजिए, अपने पड़ोसी को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। भाई को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया,
ایک سے ایک ملے تو ذرہ بن جاتا ہے صحرا، ایک سے ایک ملے تو رائی بن سکتی ہے پربت، ایک سے ایک ملے تو انسان بس میں کر لے قسمت، ایک سے ایک ملے تو انسان بس میں کر لے قسمت، ایک اکیلا تھک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، موتی سے ہم مٹی سے ہم لال کالے موتی لائے جل سے، جو کچھ اس دنیا میں بنا ہے بنا ہمارے بل سے، کب تک محنت کے پاؤں میں دولت کی زنجیریں، ہاتھ بڑھا کر کھینچ لو اپنے خوابوں کی تعبیریں، ایک اکیلا تھک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا۔ پیغام ختم ہو گیا اور آپ جس کے لال ہیں، کہاوت میں مشہور ہے کہ پھل جو ہے درخت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اولاد بہت نیک ہے تو سمجھ جائیے کہ ماں باپ کتنے نیک ہیں۔ پھل جو ہے درخت سے پہچانا جاتا ہے۔ بس میرے حصے کا جلسہ مکمل، ماں باپ کی دعا آپ کو بھی مل جائے، ہمارے ماں باپ کی دعا ہم کو مل جائے، ماں باپ زندہ رہیں، خدمت ہو جائے، ماں باپ مر جائیں، دعائیں مغفرت ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بس 1 منٹ کا پیغام سنانا ہے۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ کو ماں باپ کہیں گے، ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ کہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اب جو میں سنا رہا ہوں آپ کو یہ تجربہ سنا تھا، کتابی بات نہیں، تجربے کی بات۔ میری داڑھی بالکل کچی ہے، داڑھی ابھی ہماری لگی نہیں ہے، بالکل کچی ہے، تجربہ بتانے کی نہیں ہے، کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے تجربہ وہ بتا دوں، تجربہ سنا رہا ہوں۔ اور اللہ کرے کہ اس تجربے کو آپ قبول کر لیں اور اللہ آپ کی عمر بھی بڑھا دے، روزی بھی بڑھا دے، صحت بھی بڑھا دے۔ دھیان سے سنیے گا، ماں باپ میں اور اولاد میں 3 فرق ہے۔ اس کو سناتا ہوں، پیغام کو ختم۔ جب بھی کسی عورت کو دیکھیے گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، سمجھ جائیے اس کو صدمہ، عورت ہے گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھی، بہت بڑا صدمہ۔ گال پر ہاتھ رکھ کر کے عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے رشتہ دار نے کہا کہ ارے چاند جیسا شوہر ملا، جنت جیسا گھر ملا، تم کو کون سا صدمہ ہے؟ ماں باپ کا کردار کتنا بڑا عظیم کردار ہوتا ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ 1 سال ہو گیا گود میں بچہ نہیں، 2 سال ہو گئے گود میں بچہ نہیں، بچہ ہے تو سب کچھ اچھا، بچے کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ماں باپ کی وہ ہستی ہے، بچہ ہے تو اس کو سب کچھ اچھا لگتا ہے، بچہ نہیں تو اس کو سب کچھ خراب لگتا ہے۔ یہ ذات کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے۔ آپ کا بچہ بمبئی میں رہتا ہے، کبھی کبھی فلائٹ سے بھونیشور آتا ہے، کبھی کبھی ٹرین سے کٹک آتا ہے، تو وہ وہاں سے جب آتا ہے تو فون کرتا ہے ماں باپ کو کہ میں گھر آ رہا ہوں، بیوی کو فون کرتا ہے میں آ رہا ہوں۔ بیوی میں اور ماں باپ میں فرق ہے، 1 منٹ کا دکھاتا۔ جب وہ بمبئی سے چلا تو اس کو کٹک پہنچتے پہنچتے، بھونیشور پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور گھر آتے آتے صبح ہو گئی۔ اب دیکھیے گھر میں انقلاب، بچے سو رہے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، بیوی سو رہی ہے، بے خبر سو رہی ہے۔ آنے والے مسافر کا اگر جاگ کر کے کوئی انتظار کر رہا ہے تو بوڑھے ماں باپ انتظار کر رہے ہیں۔ تیسرے نمونے کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ کبھی کبھی جھگڑا ماں باپ کا بیٹے سے ہو جاتا ہے اور بیٹے کا جھگڑا کبھی ماں باپ سے ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کا جب جھگڑا بیٹے سے ہوتا ہے تو ماں باپ گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ صبح کو بھاگتے شام میں لوٹ جاتے، شام میں بھاگتے صبح کو لوٹ جاتے۔ بچے تانا مارتے ہیں جب بھاگنا ہی تھا تو آئے کیوں، جب آنا تھا تو بھاگے کیوں؟ تو ماں باپ کہتے ہیں کہ میری نفرت پر تمہاری محبت غالب آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ اتنی جلدی اپنی اولاد کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر بیٹے کا جھگڑا ہو جائے ماں باپ سے تو گھر چھوڑ کر کے ایسا بھاگتا ہے کہ سیدھے سسرال کو پکڑ لیتا ہے۔
اب وہ جیتے جی ماں باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھتا، اور کب لوٹ کر کے آتا ہے جب ماں باپ کا جنازہ اٹھتا ہے۔ اب گھڑیال کے آنسو بہا رہا ہے، او بدنصیب سانپ تو نکل چکا، لکیر کو پیٹ کر کے کیا ملے گا؟ ماں باپ تم کو معاف کر دیتے تھے، تم نے ماں باپ کو معاف نہیں کیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے ماں باپ کو معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، زندہ رہے خدمت کریں گے، مر گئے دعائیں مغفرت کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے انشاءاللہ۔ رو رو کے مانگتی ہوں تیرے لیے دعائیں، مر جاؤں تیرے بدلے لے کر تیری بلائیں، جیون مٹا کے اپنا جیون تیرا بچا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں، او میرے لالا جا، تیرے لیے ہوں پاگل آخر کو ماں تیری، جگ میں رہے تو زندہ اجڑے نہ گود میری، ایک بار اپنے ہاتھوں دولہا تجھے بنا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں، او میرے لالا جا، او میرے دل کے ٹکڑے، او ممتا کے پیارے، سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سہارے، سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سہارے، ماں سے تو کیوں خفا ہے، آ میں تجھے منا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں، او میرے لالا جا، ٹھکرایا جس نے باپ کو، گھر سے دیا نکال، اس کو سمجھیے دین کی دولت نہیں ملی، گستاخ والدین کو رب کی طرف سے بھی جنت میں لے کے جائے، وہ فطرت نہیں ملی، ماں کی ممتا، ماں کی ممتا کو چین آ جائے، ایسا کیا کام آپ کرتے ہیں، ایسا کیا کام کالیاں ماں کو دینے والے لوگ، بے یقینی کی موت مرتے ہیں، باپ کا کچھ نہیں رکھتے وقار، باپ کا کچھ نہیں رکھتے وقار، وہ جو کم ضعف ان سے لڑتے ہیں، وہ جو کم ضعف۔ جلسہ ختم ہو گیا، ایک بار آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے، جوان بیٹا ہے اللہ جائز روزگار عطا فرمائے، گھر میں بیماری ہے اللہ اس کو دور فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین ڈھکر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کتاب نہ کہتے چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کافی دور سے سفر کر کے جب میں آیا اور آپ لوگوں کی طلب اور محبت میں اپنے سفر کی ساری تکلیف کو بھول گیا،
अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। और आज के बाद कल फिर मुजफ्फरपुर में जलसा है। आपका जलसा ऐसे वक्त में पकड़ाया है जो जलसे की चक्की में मुकर्रिर को पीसा जा रहा है, बिल्कुल आटा बना करके छोड़ दिया जा रहा है। मैं तो उम्मीद भी नहीं रखता था कि इतना सुना दूंगा आपको और आप इतना सुन लेंगे, लेकिन वही कहते हैं कि मोहब्बत में ऐसी ताकत है कि बूढ़ा भी पहलवान हो जाता है। खैर 10 मिनट का पैगाम सुना देता हूँ, 10 मिनट का पैगाम सुना देता हूँ, चूँकि आपके लिए भी मुझे आना है, दूसरे के लिए भी कुछ बचा करके ले जाना है, और सारा खेल आवाज़ पर है। अभी आप देखने में जितने लोग आ रहे हैं सबकी आवाज़ लगी हुई है, और लगने की वजह क्या है? मुसलसल जलसा। क्योंकि आवाज़ एक ऐसी ताकत है कि इसमें सांस के साथ एनर्जी लॉस होती रहती है। लेकिन आप जवां मर्द हैं, आप लोगों की जवां मर्दी का देखिए कैसा जिंदा सबूत है कि और सब जगह क्या है? पर्ची दी जाती है, हजरत बहुत हो गया, लोग उकता रहे हैं, बैठ जाइए, कुर्सी छोड़ दीजिए। कुर्सी तो आप पकड़े हुए, छोड़ क्यों नहीं रहे? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग सवार हैं कि नहीं, हम आपको ताबूत में सुला ही देंगे। खैर माशाल्लाह, 10 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे उम्मीद थी कि कुछ बचा करके रखेंगे, हो सकता है कि फरमाइश में वो काम आ जाए। आज से 150 साल पहले मिल की तरह आटा की मिल नहीं होती थी, जैसे अभी मशीन चलती है और आटा पीसा जाता है, इसको मिल कहते हैं। पहले जांता होता था, चक्की होती थी, उसमें 2 पार्ट होते थे, एक पत्थर नीचे होता था, एक पत्थर ऊपर होता था, और किल्ले से पकड़ करके चक्की को चलाया जाता था। और छोटा सा मुंह बना हुआ होता था, उसमें मुट्ठी मुट्ठी करके दाना डाला जाता था, और उसको घुमाया और वो आटा बन जाता था। आज से 50 साल पहले यही चक्की होती थी, उसको जांता बोलते थे और चक्की बोलते थे। वही ज़माना है, चक्की चल रही है, किले को पकड़ करके चक्की चलाई जा रही है, और वो जो मुंह बना हुआ है उसमें मुट्ठी मुट्ठी करके दाना डाला जा रहा है, और दाना अंदर गया, आटा बन गया, ये देखा जा रहा है। बाप देख करके रोने लगा, बेटा देख करके हंसने लगा। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटा बोला, बे अब्बा, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बता। तो बाप ने कहा कि बेटा, ये दुनिया चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। चक्की चल रही थी, आटा बन रहा था, मुझको अपनी मौत याद आ गई, इसलिए मैं रोने लगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आपका रोना सही है, आपने किले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलते चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में, साबुत बचाना कोई, साबुत बचाना कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल बभार, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। रमजान का महीना आ रहा है तो आप देखेंगे हट्टा कट्टा, उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के बोलेगा, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। सर भी उठा लेगा और कटोरा भी उठा लेगा। एक शरीफ आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे? तो बोला, किस बात की शर्म, मेरा बाप इंटरनेशनल फ़कीर, मेरा दादा नेशनल फ़कीर, ख़ानदानी पेशा है, शर्म किस बात की।
तो भीख देने वाला जब आया तो सर गाड़ करके उसने भीख दिया। ये मारे शर्म के पानी पानी हो गया। अरे अल्लाह का बंदा, बेशर्म तो मैं हूँ, भीख भी मांगता हूँ, सर भी उठाता हूँ, कटोरा भी उछालता हूँ। तुम तो शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले हो, सर गाड़ करके भीख क्यों दे रहे हो? उस आरिफ ने कितनी बड़ी बात कही है, आपके दिल तक ये बात पहुंच गई। उसने कहा, यार मैं तुमको सर गाड़ करके भीख इसलिए दे रहा हूँ, तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने कल ही मेरी जेब में पैसा दे दिया। मेरा रास्ता कहीं और से निकल रहा था, लेकिन आल भेज दिया। तुमको भीख का कटोरा लेकर के आज खड़ा किया, तुम्हारे वास्ते पैसा मेरी जेब में कल ही दे दिया। रास्ता कहीं और से निकल रहा था, इधर भेज दिया। उसी का दिया हुआ पैसा उसी के नाम से, उसी की तौफीक से दे रहा था। शर्म आई कि काम तो वो बना रहा है, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए सरकार करके भीख दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन रे। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। एक आदमी राजा होकर के इतना कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था। एक बार मेंबर पर बैठ करके बोला, जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। अब सबके कान खड़े हो गए कि आज इनाम मिल जाएगा, रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो बोला कि मेरा सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो उड़ीसा का एक जवान खड़ा हुआ, हुजूर इसका जवाब मेरे पास। आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। अल्लाह समझ रहा है कि ये तो चम्मच ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा चमचा है, ये तो पूरा मक्खन लगा रहा है, जबकि फूटी कौड़ी किसी को मैं देता नहीं। बोला कि तुम मुझको बेवकूफ नहीं बना सकते, मेरी हथेली में बाल नहीं है, देते देते घिस गया। ये बताओ कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहा कि हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। अल्लाह समझ में आ गया कि आज ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ ही दे। बोला कि तुम मुझको बेवकूफ नहीं बना सकते हो, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया। आल के इतने सारे लोग बैठे हुए, किसी की हथेली में बाल नहीं, इसका जवाब दो। का हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, आप सब कुछ हमको देते हैं, सब मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिला ही नहीं, हसरत के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया है। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव। अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। आखिरी दोहा सुना देता हूँ अमीर खुसरो मरहूम के हवाले से। कि प्यास लगी, बाहर जा रहे थे, कुएं को तलाश कर रहे थे, तो देखा कि 4 लड़की कुएं से पानी निकाल रही। तो अमीर खुसरो मरहूम गए वहाँ और लड़कियों से कहा कि पानी, प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा कि आप शायर आदमी हैं, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, शेर पढ़िए। तो अमीर खुसरो मरहूम ने कहा फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, कपड़ा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की बोली कि घर में मेरे कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है, दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। 4 लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरो मरहूम ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से,
چرخا دیا جلائے کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے آیا کتا کھا گیا آیا کتا کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پڑتی مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے حویلی چوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلیں ہیں اسے کی نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین ڈھک کر شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللہ ہمارے بڑے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما ان کا سایہ تادیر قائم فرما جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما موت سے پہلے کلمہ اور ایمان سے محروم نہ فرما جوانوں نے اس میں حصہ لیا ہے اس جلسے کو جوان کیا ہے اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرما دین دنی رات چگونی ترقی سے مالا مال فرما دین کا حافظ دین کا محافظ دین کا دائی دین کا شہدائی بنا کر اپنی عبادت کے لیے اپنے رسول کی اطاعت کے لیے مخلوق کی خدمت کے لیے ہمارے جوانوں کو قبول فرما ماں اور بہنوں نے حصہ لیا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما ان کے آبرو کی قدم قدم پر حفاظت فرما ان کے ایمان کی قدم قدم پر حفاظت فرما ملت کے بچے جاگ رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ان کے مقدر کو جگا کر ان کو علم اور ادب سے مالا مال فرما دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت سے مالا مال فرما مقصد کو پورا فرما مشکل کو آسان فرما حال کو خوشحال فرما مستقبل کو روشن فرما ماضی کی تلافی کا موقع عطا فرما جان کی حفاظت فرما مال کی حفاظت فرما عقل کی حفاظت فرما نسل کی حفاظت فرما ملک کی حفاظت فرما مالک کی قبولیت کی گھڑی ہے سارے دروازے بند ہیں صرف تیرا ہی دروازہ کھلا ہے مالک ہمارا ایمان ہے
ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، تو معاف کرتے کرتے تھک نہیں سکتا۔ رحمت کی رسی ڈال کر ہم سبوں کو گناہوں کے سمندر سے نکال دے، ہماری مشکل کو آسان فرما۔ جو نئے پرانے بیمار ہیں سب کو بیماری سے شفا نصیب فرما، جو نئے پرانے مر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، قرض کی ادائیگی کی صحیح صورتیں اور شکلیں پیدا فرما، جو جوان بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کے لیے قبول فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا